about the muscular tissue. In my previous slides, I have discussed about the connective tissue and the epithelial tissue, which you have seen. So today we are going to discuss about the muscular tissue, the third type of the animal tissue. Okay. So I have told you that the animal tissues are of four types. That is the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the nervous tissue. In which two of them I have already discussed in my previous slides, that is the epithelial tissue and the connective tissue. In epithelial tissue, what is happening? It is like a covering on the organs. It protects the organs or the parts of the body, whereas the connective tissue, it forms the connection between the two parts. It joins the two parts of the body. Okay. Then the third part is the muscular tissue. So what are the muscular tissues actually? The tissues which are responsible for the movement in the body. The muscular tissues, as the name suggests, the muscular is derived from the word muscle. जो muscular नाम है बेटा, वो muscle से arrive हुआ है. ठीक है. It means हमारे body में वो muscles वो part है जो कि हमारे body को move करने में help करता है. So in this video we are going to talk about the muscular tissue. Okay. Let's understand with the help of the example. Like we breathe. What happen when we breathe? There is some movement in our chest. हमारे chest में कुछ movement occur करते हैं, up and down movement occur करता है. ठीक है. So try it yourself first. Inhale and exhale air. What is happening when you inhale air? There is some movement occur in your chest. Put your hands on the chest. You will feel there is a movement occurring when you inhale or exhale the air. This happens because the muscles which are present in the chest, it causes contraction and relaxation due to the inhalation and the exhalation process. That's why it shows movement. Okay, let's understand with the other example, that is while cooking. While cooking, what is happening? We move our hands here and there. We took spoons. We do many things. We cut the vegetables with the help of the knife by our hands. ठीक है. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है बेटा, ये जो हैंड का मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? हमारे हैंड्स में जो मसल्स है उनकी वजह से हो रहा है. ठीक है. अगर ये मसल्स नहीं होंगे तो हमारा हैंड मूव नहीं कर सकता. वी कांट डू एनीथिंग. ठीक है. तो बहुत सारे एग्जांपल्स है. कुकिंग हो गई, जब हम वॉकिंग करते हैं, हमारे लेग्स मूव करते हैं. क्यों मूव करते हैं? क्योंकि हमारे लेग्स में मसल्स प्रेजेंट है और वो एक्सपैंड करते हैं, एज वेल रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट कॉज होता है. ओके. लाइक प्लेइंग. ठीक है. वॉट एवर वी डू एंड जिसमें भी हमारे बॉडी की मूवमेंट अकर होती है, वो सारी मूवमेंट किस वजह से अकर होगी? वो मसल्स की वजह से होगी, जो भी मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. Now let's talk about what is present inside the muscular tissue which causes these type of expansion and relaxation. ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से कि मसल्स में ये चीज़ें वो इतनी लचीली होती है. ठीक है. तो क्या होता है इसमें बेटा? इट कंटेन द मसल फाइबर एंड कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. इसके पास एक प्रोटीन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव करता है. So do you understand what do I mean by the contraction and relaxation? ठीक है. So take example of a spring. ठीक है. एक स्प्रिंग लेते हैं हम लोग, तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे बेटा तो वो पूरा फैल जाता है. ठीक है. वो बहुत इलास्टिक होता है, वो स्ट्रेच कर जाएगा. So that it means when it expand we say expansion. ठीक है. तो जब वो एक्सपैंड कर रहा है तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंशन हो जाएगा. उसके बाद जब वो एक्सपैंड कर गया, अब हम जब उसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा बेटा? वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिलैक्सेशन. ओके. सो द मसल्स कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज ऑफ द मसल्स इज कॉज्ड. ओके. इस प्रोटीन की वजह से ही हमारे जो मसल्स है वो एक्सपैंड कर पाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं. ठीक है. So this is the basic property of the muscular tissue, that is expansion and the relaxation. Without the muscular tissues, अगर कोई बॉडी में मसल्स ही नहीं प्रेजेंट है, जस्ट इमेजिन कि हमारे बॉडी में मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती. वी कांट मूव आवर हैंड्स, वी कांट मूव आवर लेग्स. ठीक है. तो जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट अकर कर रहा है, हम किसी चीज़ को हाथ में ले लेते हैं, हम कोई चीज़ को किक करते हैं, हम वॉक करते हैं, प्ले करते हैं, हम कोई चीज़ को हाथ से उठाते हैं. दिस मूवमेंट अकर बाय विच this is occur due to the muscular tissue, this is occur due to the muscles. ठीक है.
Now let's talk about the types of the muscular tissue. There are basically 3 types of the muscular tissue as I have mentioned here. That first is the striated muscles, जिसको हम लोग skeletal muscles भी बोलते हैं, ठीक है. Second है smooth muscles और unstriated muscles, and the third is the cardiac muscles. So as we move ahead, we are going to discuss in detail one by one. So firstly, we are going to discuss about the striated muscles or the skeletal muscles. So let's talk about the skeletal muscles tissue. So this is the most abundant tissue, ठीक है. जनरली ये सभी बॉडी में ज़्यादातर यही पाया जाता है. So as the name suggests, so this muscles has something to do with the skeleton, ठीक है. तो इसका मतलब ये बेटा कि इसका नाम skeletal muscles भी होता है, तो इसका मतलब ये skeleton के साथ इसका कुछ कनेक्शन है. It form a connection with the skeleton, इसलिए इसको हम लोग skeletal muscles भी बोलते हैं. It is also called the voluntary muscles. Now what is the meaning of the voluntary? ठीक है. Why these muscles are known as the voluntary muscles? Because the movement that happens as per our will, if we want, like we want to catch the ball, ठीक है. तो जब हम उसे कैच करना चाहेंगे तभी हमारे हैंड्स मूव करेंगे, ठीक है. जब हम चाहेंगे तभी हमारे हैंड्स मूव करेंगे और वो बॉल को कैच करेंगे. तो जो भी मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रोल में जो भी मूवमेंट होता है, जो हम चाहते हैं तब वो अकर करता है, दैट मूवमेंट आर नोन एज द वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है. लाइक वी वॉन्ट टू राइट, वी डोंट वॉन्ट टू राइट, तो सब ये सभी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करनी कि हमें लिखना है नहीं लिखना है, हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हमें ये चीज़ उठानी है नहीं उठानी है, ये हमारे कंट्रोल में. जब अगर हम चाहेंगे तभी हम उस चीज़ को, हमारा हैंड मूव करेगा और हमारा हैंड उसे उठाएगा. अगर हम उसे नहीं चाहते उठाना तो वो चीज़ हमारा हैंड मूव नहीं करेगा और वो चीज़ नहीं उठेगी. तो जो भी चीज़ें अगर करती है हमारे बॉडी में, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रोल में जो भी चीज़ें हैं, दैट इज़ नोन एज द वॉलंटरी मूवमेंट्स. और ये मूवमेंट किस मसल्स के थ्रू अगर करेंगी? वॉलंटरी मसल्स के थ्रू, ठीक है. तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है या फिर स्केलेटल मसल्स है, ये एक टाइप का वॉलंटरी मसल्स ही होता है जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारे अकॉर्डिंग काम करता है. तो ओके, सो लाइक when you feel like jogging, you will jog, that means you will make movement only when you want, ठीक है. तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, सुबह टहलने जा रहे हैं या फिर कहीं रेस करने जा रहे हैं, तो जब हम चाहेंगे रेस करना या फिर टहलना तभी हमारा लेग जो है मूवमेंट शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा, ठीक है. तो अगर हम चाह रहे हैं तो हमारा जो लेग है वो आगे बढ़ेगा, और जब हम चाहेंगे कि अब हमें रुकना है, जब हमें स्टॉप होना है, तो अपने पैर को रोक लेंगे और हमारा पैर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस मसल्स और दिस मूवमेंट इज नोन एज द वॉलंटरी. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटेड मसल्स. इसको स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं बेटा? इसका नाम है स्ट्रेटेड मसल्स, मैंने यहाँ पे लिखा है. कैन यू गिव द आंसर व्हाई दे आर नोन एज द स्ट्रेटेड मसल्स? ओके, लेट मी टेल यू. बिकॉज दीज मसल्स, जब इसको हम माइक्रोस्कोप, जब इस टिश्यू को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो क्या हमने देखा कि इस मसल्स में कुछ स्ट्रिप्स है, कुछ लाइट स्ट्रिप्स हैं, कुछ डार्क स्ट्रिप्स है. लाइक व्हेन यू सी द डायग्राम, सी हियर, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है बेटा हमारा स्ट्रेटेड मसल्स का. इसमें आपको 2 सेक्शंस दिख रहे हैं, एक अल्टरनेट जा रहा है, ठीक है. ये वाला जो सेक्शन है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड, और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड. तो जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमने देखा कि इसमें कुछ लाइट बैंड्स और कुछ डार्क बैंड्स दिख रहे हैं, जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट है. पहले लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, डार्क, ऐसे करके ये स्ट्रिप्स अरेंज्ड हैं. तो ये इसको हम लोग स्ट्रेशिएशन भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग इसलिए इसका नाम स्ट्रेटेड मसल्स हो गया. ओके, सो स्ट्रेटेड मसल टिश्यू आर आल्सो नोन एज द वॉलंटरी मसल्स टिश्यू एंड द स्केलेटल मसल्स टिश्यू. ओके, और दूसरी चीज़ ये बेटा कि जब हम इसका स्ट्रक्चर इजीली देखेंगे, जब इसको माइक्रोस्कोप में हम लोग इसको देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो क्या शो करेगा? इसमें डार्क और लाइट बैंड दोनों शो करेगा, एज वेल एज जो इसके सेल्स होते हैं बेटा, ये एक सिंगल मसल्स फाइबर है. एक सिंगल हमें पता है कि टिश्यूज़ में होते हैं, टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, तो ये सिंगल एक मसल्स फाइबर है जो कि कैसा है? लॉन्ग एज वेल एज सिलेंड्रिकल. ये आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है और ये लॉन्ग भी है, सी, ठीक है. ये लॉन्ग है एज वेल एज सिलेंड्रिकल है, और इसके अंदर ये डार्क और लाइट और डार्क बैंड्स भी पाए जा रहे हैं. एज वेल एज ये कैसे होते हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है. इनके अंदर जो सेल्स होता है बेटा, इस मस्कुलर टिश्यू में जो भी स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे, उस सेल्स में वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. इट मीन्स उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है.
न्यूक्लियस के अंदर नहीं, मतलब से जितने भी सेल्स होंगे उसमें सभी सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अगर करेंगे, एज वेल एज सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? दूसरी चीज़ ये बेटा कि इस जो भी स्टेटेड मसल्स होते हैं उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, क्योंकि हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करता है वो, जब हम चाहते हैं तभी। अगर हम ज़्यादा काम करवाना चाहेंगे उससे, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब तक हम चाहेंगे तब तक हमारे हैंड्स और लेग्स मूव करेंगे, ठीक है, वो अपने आप नहीं रुक सकते, जब हम चाहेंगे तभी रुकेंगे। तो अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हमारे लेग्स एंड हैंड्स मूव करते रहेंगे, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इस सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा वहाँ से आएगी। आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर दैट एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर इस सेल्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? इन द फर्स्ट चैप्टर आई हैव टॉक्ड यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ये कहाँ पे करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी, और एनर्जी हमें देता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो हमारा स्टेटेड मसल्स होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, वो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जब हम चाहेंगे तभी वो स्टॉप होगा। लाइक टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट हैपनिंग, जितना हम चाहते हैं उतनी जगह हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, चाहे हमारे मसल्स में पेन ही क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। तो जब तक हम चाहेंगे हमारे लेग्स और हैंड्स मूव करते रहते हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी कम फ्रॉम द सेल्स विच कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो स्टेटेड मसल्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द वॉलेंट्री मसल्स ऑल्सो, ठीक है। तीसरी चीज़, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द स्केलेटल मसल्स। तो इसके 3 नाम हो गए, स्टेटेड मसल्स टिश्यू, सेकेंड इज द वॉलेंट्री मसल्स टिश्यू, एंड द थर्ड इज द स्केलेटल मसल्स टिश्यू। And what is the function of these muscles? It helps in the movement of the limbs, jaws, eyeballs, etc. ठीक है, हमारे जितने भी हमारे हैंड्स लेग्स की मूवमेंट में, हमारे जॉस की मूवमेंट में, जब हम खाने को च्यूइंग करते हैं तो क्या होता है? जब हम चाहते हैं तभी वो च्यूइंग अकर करती है। तो जो भी चीज़ें अकर करी, जो भी मूवमेंट अकर करता है हमारे बॉडी में, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग है, जो कि हमारे कंट्रोल में है, इट इज़ अकर ड्यू टू दिस स्टेटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। Now let's talk about the second type of the muscular tissue, that is the smooth muscles tissue or the unstated muscles tissue. So what is happening? It control all the involuntary movement. So smooth muscles tissue, we include all the in the stated muscles tissue we include all the voluntary movement. जो भी voluntary movement है वो stated muscles के थ्रू अकर करेगा, और जो भी involuntary movement है वो smooth muscles या फिर unstated muscles के थ्रू अकर करेगा। ओके, so what is the meaning of the involuntary here? It means that which is not in our control, जो कि हम चाहें ना चाहें हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, that is known as the involuntary movement, and it occur through the smooth muscles tissue or the unstated muscles tissue, ठीक है। इट इज़ नोन एज द अनस्टेटेड मसल्स टिश्यू इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको बेटा माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, सी ही दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या है बेटा? इसमें आपको कोई भी लाइट और डार्क बैंड नहीं दिख रहे, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, ठीक है। तो इसमें लाइट और डार्क बैंड थे, इस वजह से इसको हम लोग स्टेटेड मसल्स बोलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अनस्टेटेड मसल्स बोलते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, लाइक टेक द एग्जाम्पल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो भी फूड हम लोग इनटेक करें, हमने फूड लिया माउथ में, उसको च्यूइंग किया, तो जो च्यूइंग प्रोसेस है वो हमारा किस में आएगा? वॉलेंट्री मूवमेंट में, जब हम चाहेंगे तभी। उसके बाद हम उसको स्वेलो कर जाएंगे। निगलने के बाद जो फूड है हमारा ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा डाइजेशन प्रोसेस अकर करेगा। तो क्या हम उस डाइजेशन के प्रोसेस को रोक सकते हैं? नो, वी कांट, ठीक है। वो प्रोसेस अकर करेगा ही करेगा, हम चाहें या फिर ना चाहें। तो जो भी मसल्स इंक्लूड है इस डाइजेशन प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एक्सक्रीशन प्रोसेस में, जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, अपने आप वर्क करता है, दोज मूवमेंट आर नोन एज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड इट अकर थ्रू द इनवॉलेंट्री मसल्स। So those movements which are not in our control are known as the involuntary movements. So let's have a look on its structure. So जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा माइक्रोस्कोप के अंदर तो क्या होगा? ये इसमें कुछ ये आपको एक स्ट्रक्चर शो कर रहा है मस्कुलर टिश्यू का, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि इसमें अगर आप एक सेल्स को देखें, ये एक सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल को अगर आप देखेंगे तो ये किस शेप का है? ये स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप मतलब ये लॉन्ग होगा,
थिन होगा, एज वेल एज इसके जो दोनों एंड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो हमारे कोनिकल होंगे, पॉइंटेड होंगे, ठीक। तो ये हमारे लॉन्ग, इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे वो लॉन्ग होंगे, थिन होंगे, एज वेल एज इसके जो दोनों एंड्स होंगे वो हमारे कोनिकल होंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स, उसके वो हमारे यूनी न्यूक्लिएट होंगे, इट मीन्स इट कंटेन ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो सेल्स थे वो मल्टी न्यूक्लिएट थे, वेयर एज स्मूथ मसल्स में जो सेल्स होंगे वो हमारे यूनी न्यूक्लिएट होंगे, ठीक है। एंड द फंक्शन इज दैट इट्स हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन, ठीक है। जो भी स्वेलिंग मूवमेंट अकर कर रहा है ओसोफेगस में, हार्ट में जो भी मूवमेंट अकर करता है, वो सारी चीज़ें इस स्मूथ मसल्स की वजह से होती हैं, ओके। Now the third type of the muscular tissue is the cardiac muscles, ठीक है, cardiac muscles tissue. So cardiac means जो कि something related हो हमारा हार्ट मसल से बेटा, ठीक है। जैसे कि जो हार्ट डिजीज़ जो भी होती हैं, जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के, उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ सिमिलर टर्म है कार्डियक और कार्डियोलॉजिस्ट। इट मीन्स जो कार्डियक मसल्स है वो सिर्फ हमारा किस में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो हमारा लाइफ टाइम बीट करता है, अगर वो बीट करना बंद कर दे तो लाइफ विल बी एंड। सो देयर इज अ मसल्स जो कि लाइफ टाइम बीट करती है एंड दैट मसल इज नोन एज द कार्डियक मसल्स, ओके। सो जो कार्डियक मसल्स, यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री है, स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री, तो दोनों अलग अलग क्यों है? तो दोनों अलग अलग इसलिए बेटा क्योंकि जो कार्डियक मसल्स है उसका कुछ जो कैरेक्टर है वो हमारा स्मूथ मसल से भी मिलता है एज वेल एज स्केलेटल मसल से भी मिलता है, इसलिए हमने इसको अलग ग्रुप में रखा है, ओके। एज वी मूव अहेड वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो एज आई टोल्ड यू, जो कार्डियक मसल्स होंगे वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ हमारे हार्ट के वॉल्स में, और ये हेल्प लाइफ टाइम हार्ट को बीट करने में हेल्प करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें। अगर ये कार्डियक मसल्स स्टॉप हो जाएं, बीट रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन फेज ना करें, तो क्या होगा, आवर हार्ट विल स्टॉप एंड वी विल डाई। सो इन द प्रीवियस चैप्टर लाइफ प्रोसेस मैंने आपको बताया था सर्कुलेशन में कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज होता है, ठीक है। पंपिंग ऑफ हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज होगा, वो किस मसल्स के थ्रू अकर करेगा, कार्डियक मसल से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो इसमें बेटा मैंने आपको भी बताया कि इसमें कुछ कैरेक्टर स्मूथ मसल्स के हैं, कुछ कैरेक्टर स्केलेटल मसल्स के हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इसको अलग रखा हुआ है। और इसको और ये एक टाइप का यूनिक मसल्स टाइप का एक टाइप है, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज के लिए, जो कि हमारा लाइफ टाइम अकर करता है और हार्ट हमारा लाइफ टाइम बीट करता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स स्ट्रक्चर। सो व्हेन यू सी इट्स स्ट्रक्चर, सी इट इज समवॉट लाइक दिस। When you see it under, when you observe it under the microscope, it will look like this. So what is there? It has strips but not prominent, ठीक है। जब हम इसको बेटा ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ये जो हमने शेड किया हुआ है ये स्ट्रिप्स हैं, ओके। ये स्ट्रिप्स हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं होते हैं। तो स्ट्रिप्स किस में पाए जाते हैं, स्ट्रिप्स हमारे हमेशा स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी पाए जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़े प्रोमिनेंट नहीं है। इट मीन्स कि ये इसका जो कैरेक्टर है और स्केलेटल मसल्स का जो कैरेक्टर है, वो जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, इसलिए वो उसके कुछ सिमिलर होते हैं। द सेकेंड थिंग इज दैट ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, जो किसका कैरेक्टर है, जो कि हमारा स्मूथ मसल्स का कैरेक्टर है। तो ये जिसमें जो स्ट्रिप शो कर रहा है वो हमारा स्ट्रेटेड मसल्स का कैरेक्टर है, और जो यूनी न्यूक्लिएट कैरेक्टर है वो हमारा किसका कैरेक्टर है, स्मूथ मसल्स का। तो दोनों कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से ये मसल्स बना है, इसलिए ये बहुत ही यूनिक मसल्स है जो कि सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉज करता है, जो कि पूरे लाइफ टाइम अकर करता है, ओके। So I have discussed about the three types of the muscles, that is the straighted muscles and smooth muscles, and the lastly is the cardiac muscles. So let's have the brief description of the three. What is the difference between the three? Smooth muscle, straighted muscles में क्या होता है बेटा कि वो वॉलंट्री होते हैं, स्मूथ मसल्स इनवॉलंट्री होते हैं, और कार्डियक मसल्स में क्या होता है, ये सिर्फ हार्ट में पाए जाएंगे जो कि लाइफ टाइम बीट करते हैं। So I hope you all have understood what is actually the muscular tissue, okay. Thanks for watching. If you have any query, you can ask me in the comment box. If you like my video, please do like, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more videos. Thank you.